Lौkic and alaukic Gyan, the two dimensions of Indian knowledge. A warm welcome to all of you. In today's class, we are going to talk about two types of Indian knowledge tradition, how we are actually perceiving knowledge in different dimensions through Lौkic and alaukic Gyan process. So without any further delay, let's begin today's class. Classification of knowledge in Indian tradition. Indian philosophy offers a holistic framework for understanding knowledge, spanning the material and the spiritual, the observable and the transcendental. This classification reveals the depth and sophistication of ancient Indian epistemology. Lौkic and alaukic knowledge, the two dimensions of knowing. Lौkic knowledge is rooted in sensory experience and practical application, the domain of science, tech, and everyday reasoning. On the contrary, alaukic knowledge transcends the senses, arising from meditation, spiritual realization, and direct inner experience of metaphysical truth. Together, they represent India's holistic approach, neither rejecting the material nor ignoring the spiritual. So, लौकिक और अलौकिक ज्ञान को डिफ्रेंशिएट करते हुए हम ये कह सकते हैं, लौकिक वो ज्ञान है जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा के लॉजिक को डील करते हैं, जबकि अलौकिक ज्ञान वो ज्ञान है जो हम मेडिटेशन के द्वारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करके अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर के बारे में पहचानते हैं. सो लौकिक is worldly, whereas alaukic is transcendental. Alaukic is spiritual realization, metaphysical by nature, and feel able to realize our inner wisdom. On the contrary, in the Lockic worldly knowledge, we are observable, empirical science, and practical skills are being used. Nyaya philosophy and valid knowledge. The Nyaya school developed systematic logic and became the foundation of Indian epistemology, emphasizing rigorous reasoning, proof, and structured inquiry as the path to valid knowledge. Pramata, known as the knower, the one who is subject to know the knowledge or to seek the knowledge. Praman, the instrument of source of the valid knowledge. Pramaya, the object of knowledge, what is to be known. And Pramiti is the result, the valid recognition, the cognition, confirmed knowledge. So, न्याय वो पहला फिलॉसफी बना जिसने लॉजिक रखा अपने बेस में और जिसने इंडियन एपिस्टेमोलॉजी का फाउंडेशन रखा. न्याय एक बहुत ही लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड फिलॉसफी रही है, जिसमें प्रमाता है जो वो इंसान है जिसको जानना है, प्रमाण है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नॉलेज तक पहुंचेंगे, प्रमेय है यानी वो नॉलेज जिसको हमें जानना है, और प्रमिति है वो वैलिड कॉग्निशन, वो कंफर्म्ड नॉलेज जो हमें पता है. सो ये चार तरीके से हम वैलिड नॉलेज गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी. आई होप ये क्लियर है. प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एंड प्रमिति. Stages of acquiring knowledge. Indian epistemology describes knowledge acquisition as a gradual, disciplined process, moving from raw perception through doubt and reasoning towards confirmed understanding. आप पहले कुछ परसीव करते हो, उसके बाद आपके मन में संशय या डाउट आता है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है. आप खुद से रीजन करते हो, आप किसी विद्वान, किसी नोन, किसी एक्सपीरियंस से रीजन करते हो, और जब आप सेटिस्फाई होते हो उस रीजनिंग से, तब आप कंफर्म होते हो कि व्हाई दैट पर्सन या व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट. सो संशय या इंक्वायरी, जो आप रीजन करते हो, जो आप सवाल करते हो, इज नॉट अ वीकनेस माय फ्रेंड्स. इट इज द इंजन ऑफ लर्निंग. Rational analysis systematically eliminates confusion, leading to genuine and validated knowledge. जिस दिन आपने अपने सवाल करना बंद कर दिया, उस दिन आपने सीखना बंद कर दिया. इसलिए आप सवाल करते रहिए. आप डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि डाउट आना कोई वीकनेस या कोई अंडर एजुकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता.
डाउट्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है आप रेडी हैं एक्वायर करने के लिए एक नया नॉलेज, अपने अंदर के कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए. सो दैट्स व्हाई doubt has been placed as one of the important stages for acquiring knowledge. प्रत्यक्ष प्रमाण perception. Pratyaksh is the most immediate source of knowledge, direct sensory experience without intermediary. It forms the empirical foundation of both ancient and modern science. Seeing fire, direct visual perception confirms the presence of flame. Hearing sound, auditory perception registers vibration as knowledge. Lab experiments, modern science relies entirely on sensory observation. यहाँ बात हो रही है प्रत्यक्ष की. प्रत्यक्ष एज अ प्रमाण, एज द वे ऑफ अटेनिंग नॉलेज, जिसे इंग्लिश में परसेप्शन या परसीविंग भी कहते हैं. प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन तब फॉर्म होता है जब आपके सेंस ऑर्गन किसी भी एक नॉलेज या किसी एक अननोन चीज से कांटेक्ट करते हैं और आप उसे अंडरस्टैंड करते हो. जो सबसे पहली चीज आपको समझ आएगी ना, वही परसेप्शन है. आपने आग देखा, आपको क्या लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो गर्म है, जो धधकती है, जो जलाती है. तो आपको समझ आया कि आग क्या होती है. आपने कोई साउंड सुना तो आपके कान बजे, आपको पता चला कि वो साउंड तेज है या धीरे है, या वो किसी बच्चे का रोना है या किसी बड़े का चिल्लाना. तो ये जो आप डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर रहे हो थ्रू साउंड, थ्रू फायर, वो सब रिजल्ट है आपके परसेप्शन का जो आपने देखा. सो दैट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज. अनुमान प्रमाण, इन्फ्रेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग. अनुमान वही है जो आप तुक्का मारते हैं कि यहाँ ये हुआ होगा इसीलिए ऐसा है. इन्फ्रेंस ड्रॉज कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑब्जर्व्ड एविडेंस यूजिंग प्रायर नॉलेज. और ये तुक्का भी आप तभी मारते हैं जब आपको पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होता है. द बैकबोन ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने धुआं देखा तो आप क्या बोलेंगे कि आग लग गई, आग लग गई. वो आग आपको दिख नहीं रही लेकिन धुआं दिख रहा है. और आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर रखा है कि धुआं तभी होगा जब आग होगी. सो दिस इज अनुमान प्रमाण. जब आप इन्फ्रेंस करते हो या लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हो. और आज मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, टेस्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं. यही लॉजिक लगता है फॉर आर्किटेक्चर या किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में. शब्द और उपमान, टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन. जब हम बात करते हैं शब्द प्रमाण की, तो वो जब हमारे हमारे टीचर, हमारे सीनियर्स या हमारे एल्डर्स कुछ एजुकेट करते हैं, हम उसको बिना किसी भी तर्क के या बिना किसी भी फाइट के उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो वो है शब्द, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे, सही बोलेंगे. और उपमान तब है जब हमें किसी एक चीज के बारे में नहीं पता और उसको बताने के लिए हमने किसी दूसरे का एग्जाम्पल लिया हो, तो वो उपमान होगा. जैसे कि गाय, आपको पता है, यू नो हाउ अ काउ लुक्स, बट हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि नील गाय कैसे दिखती है. तो अगर आपको मैं बताऊं कि नील गाय गाय की तरह दिखती है पर वो एक्चुअली में गाय नहीं होती. सो नाउ अगर आप जंगल में जाएंगे और आप किसी ऐसे जानवर को देखेंगे जो गाय की तरह है बट वो काऊ है नहीं, तो आप फाइनली कंक्लूड जरूर कर पाएंगे कि ये नील गाय है, बिकॉज किसी ने मुझे कहा था कि वो गाय की तरह दिखती है. सो दिस टाइप ऑफ नॉलेज, दिस टाइप ऑफ वैलिड knowledge seeking is called उपमान प्रमाण. So both sources are validated through reason. Blind acceptance is never endorsed in न्याय. तो न्याय जो है वो कभी भी ब्लाइंड एंडोर्समेंट नहीं करता. ये दोनों भी लॉजिकल है और रीजनिंग बेस्ड है. संशय, doubt as the basis of innovation. In India, epistemology, doubt is not ignorance, it is the spark of inquiry. It drives research, invention, and critical thinking. Question arises, you research for that particular doubt, you experiment, and when the experiment works, you are able to discover something new. अगर एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता या सोचा ही नहीं होता और इतने टाइम फेल होने के बाद भी अगला अटेम्प्ट नहीं दिया होता, तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? नहीं होता. अगर न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने के बाद उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये एप्पल मेरे सर पे ही क्यों गिरा, ये कहीं ऊपर क्यों नहीं गया, तो क्या आप ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ पाते? कभी नहीं समझ पाते. सो दीज वर द डाउट्स दैट
actually ended up being one of the biggest discovery of humankind. So आप एज एन इंजीनियर्स, एज अ साइंस स्टूडेंट्स, आपके मन में भी बहुत डाउट्स आते हैं, एंड साइंस इज अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी. अगर आप पे क्यूरियोसिटी है तभी आप एक साइंटिफिक अप्रोच लेके लाइफ में चल पाते हैं. सो हैविंग अ संशय, हैविंग अ डाउट इज नॉट बैड at all, given that you are actually working towards the solution of that particular doubt. So this is why Sanshay is one of the important source of valid knowledge seeking. Relevance in modern education and technology. Ancient Indian epistemological frameworks align remarkably with contemporary scientific and technological methodologies, offering timeless tools for analytical thinking. Why it matters today? AI and machine learning, inference and pattern recognition mirror Anuman and Upaman. Engineering research, Sanshay drives the hypothesis testing cycle. Data science, Praman theory parallels data validation frameworks. So ये हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं ले रहे, ये ज्ञान जो बहुत पहले हमारे भारत में मिला था हमें एंशियंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में, वो आज मॉडर्न टेक वर्ल्ड का बेस है. एआई जैसे मॉडर्न इनपुट्स, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग रिसर्च, डेटा साइंस आज उन सब चीज को अपना बेस बना के वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ एंशियंट इंडिया वाज सो फार साइटेड कि उन्होंने उस टाइम पे उन सब चीजों को वैलिडेट कर दिया जो आज का बेस बन चुका है. नाउ फॉर अ क्विक रिकैप, हमने पढ़ा कि वैलिड नॉलेज का फ्रेमवर्क क्या है. प्रमा उसे कहते हैं वैलिड नॉलेज. और न्याय कहता है कि 4 पिलर फ्रेमवर्क है: प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति. संशय एक डाउट होता है जिसको आप जब सॉल्व करते हैं तो एक और वैलिड नॉलेज आपको मिलता है. फॉर एग्जाम पर्पस ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आप दोबारा से आज के इस क्लास को और कल के हुए क्लास को दोबारा रिवाइज करने के लिए जरूर देखिएगा. आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे. एंड यस, दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम पर्पस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल to be part of our family, and kindly press the bell icon to stay updated. Like, share, and do comments if you have anything to say or anything to inquire about. Till then, take care and we'll meet in another class.